بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں اسامہ اجاز۔ تھانہ صدر پولیس نے اندھا قتل ٹریس کر لیا، 2 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ ڈی ایس پی سٹی سجاد حسین سیال نے انکشاف کیا ہے کہ قتل کا بدلہ لینے کے لیے کیسر کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا۔ انچارج پیٹرولنگ پوسٹ چیک اگو انسپیکٹر غلام حسین کی عمدہ کارکردگی، اغوا برائے زنا اور بی کیٹیگری کے ملزمان کو گرفتار کر کے تھانہ لادھے والا وریٹ کے حوالے کر دیا۔ مزید جانتے ہیں شکیل نذیر کی اس رپورٹ میں۔ انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی ہدایت پر اور ڈی آئی جی پی ایچ پی ڈاکٹر محمد اطہر وحید کی زیر نگرانی ڈی ایس پی پنجاب ہائی وے پیٹرول ملک نعیم کی خصوصی کاوش پر پنجاب ہائی وے پیٹرول پی ایچ پی صوبے کی تمام ہائی ویز پر شہریوں کی خدمت اور جان و مال کے تحفظ کے لیے شب و روز مصروف عمل ہے، اور اسی سلسلے میں انچارج پیٹرولنگ پولیس چک اکو غلام حسین نے ٹیم کے ہمراہ دوران گشت پولیس ایپ کے ذریعے چیکنگ کرتے ہوئے ایک اغوا برائے زنا کے مقدمے میں ملوث ملزم عمر کو گرفتار کر لیا، جس کے خلاف تھانہ سبزہ زار لاہور میں مقدمہ بھی درج ہے، جبکہ بی کیٹیگری کا ملزم لیاقت علی ولد خوشی محمد جو تھانہ صدر لالا موسیٰ کو مطلوب تھا، دونوں کو گرفتار کر کے تھانہ لادھے والا پولیس کے حوالے کر دیا۔ دوران گفتگو انچارج پیٹرولنگ غلام حسین کا کہنا تھا کہ عوام کے جان و مال کی حفاظت میری اولین ترجیحات میں شامل ہے اور عوام کی بے لوث خدمت پیٹرولنگ پولیس کا نصب العین ہے۔ جپال پور روڈ دیوکھارا گاؤں کے قریب موٹر سائیکل اور ٹرالر میں تصادم ہو گیا۔ تصادم کے نتیجے میں 2 موٹر سائیکل سوار موقع پر جام بحق ہو گئے۔ ریسکیو 1122 ٹیم نے دونوں ڈیڈ باڈی کو الہ آباد ہسپتال منتقل کر دیا۔ مقامی پولیس نے موقع پر پہنچ کر ضابطے کی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج برائے خواتین احمد پور سیال میں کلین اینڈ گرین پنجاب کے خواب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے گرین ڈے منایا گیا، جس میں ضلعی صدر جماعت الصالحین پاکستان ملک غلام جیلانی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں چودھری محمد طاہر اسلم۔ جی طاہر اسلم، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ ڈائریکٹر آف ایجوکیشن کالجز فیصل آباد کے احکامات اور ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز جھنگ پروفیسر محمد نعیم خان لشاری کی ہدایت پر سرسبز و شاداب پرکشش اور جاذب نظر بنانے کے لیے گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج برائے خواتین احمد پور سیال میں گرین ڈے منایا گیا۔ ضلعی صدر جماعت الصالحین پاکستان، سابق وائس چیئرمین بین المذاہب امن کمیٹی پنجاب اور ممبر کالج کونسل ملک غلام جیلانی آڑتی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ انہوں نے پرنسپل، سٹاف اور طالبات کے ہمراہ کالج کے فرنٹ گراؤنڈ میں پھولدار اور نمائشی پودے لگائے اور ان کی آبیاری کرنے کے بعد دعا مانگی۔ دیکھیں قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات خوبصورت ہے۔ جب انسان کوئی خوبصورت کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد درخت لگانا سنت نبی بھی ہے۔ اس کے بعد جو درخت ہوتا ہے وہ زمین کا زیور ہوتا ہے۔ تو میں پورے سٹاف کو ویلکم کرتا ہوں، ان طالب علم جو بچے ہیں ان کو بھی ویلکم کرتا ہوں، جو ہماری میڈم پرنسپل کالج کی ہیں چودھری نعیم النساء، میں انہیں اپریشیٹ کرتا ہوں۔ لیکن ہمارے کالج کا تھوڑا سا یہ ایک بہت سارا کریڈٹ جاتا ہے ملک غلام جیلانی صاحب کو، جنہوں نے ہمیشہ ہی ہمارے ڈے ہو نہ ہو یہ ہمارے پودوں کے لیے کانشیس رہتے ہیں، ہمارے کالج کی خوبصورتی کے لیے کانشیس رہتے ہیں۔ تو صفائی تو ویسے نصف ایمان ہے، اس کے باوجود جو پودوں کے ذریعے ان کی خوبصورتی کو نکھارتے اپنے کالج کو نکھارا جائے، اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨੇ ਖਸੂਸੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਮਤਲਬ ਗੁਲਾਮ ਜਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੌਦੇ ਵੀ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮੋਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਜ਼ਾ ਸਾਰੀ ਇਤਨੀ ਮੁਜ਼ਰਸਿਅਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤਨ ਫਵਕਤਨ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਫਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਂਸ ਲੈ ਸਕੇ। As you know that going green or celebrating green is very becoming the trend of the modern society today. The layer of the ozone is depleting day by day, and as a human being it is our duty to preserve our planet Earth. First of all, I would like to thanks to Sir Jilani, who has contributed a lot in making this possible so that we can celebrate this green day. سر غلام جیلانی صاحب کا بہت بہت شکریہ، سارا انہاں ایک تعاون کیتا ہے، پودے دیتے ہیں دے انہاں بعد میم پرنسپل صاحبہ انہاں دا بہت بہت زیادہ شکریہ۔ انہاں ایک پورے انوائرمنٹ کو کلین کروائے، ان دے واسطے پودے گھنوائیں، پودے درخت
मतलब न्यूली डिवेलप्ड कॉलेज है उनको इतना अच्छा कर दिता गया, ये सारा क्रेडिट मैम दे सर जिलानी साहब को वैंदा है। सिर्फ ऑटोमोबाइल्स नहीं हमारे और बहुत सारी ऐसी गैसेस एक्सचेंज हो रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट में जो सिर्फ ओजोन लेयर को डैमेज कर रहे हैं। तो हम लोगों की फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारे एनवायरनमेंट की तरफ कि हम इसे क्लीन करें। गो ग्रीन विद दिस एनवायरनमेंट एंड टेक केयर ऑफ योर एनवायरनमेंट। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, जो प्लांट्स हैं, जो ग्रीनरी है, जो उसकी ब्यूटी है, वो आपको हील करती है, आपको एक पुरसकून माहौल देती है और एक आपकी जो फीलिंग्स हैं जो है उसमें आपकी रिलैक्सेशन को इन्हांस करती है। ग्रीन डे मनाने का मकसद क्लीन एंड ग्रीन पंजाब के नारा को अमली जामा पहनाना है। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर से। जलमगसी में जीप रैली का दूसरा दिन स्टॉक कैटेगरी के 41 ड्राइवर्स खिलाड़ी मैदान में उतरे। जीप रैली में 135 किलोमीटर का खतरनाक ट्रैक बनाया गया है। जीप रैली में खवातीन और मर्द नामवर खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। आज 19वीं जलमगसी ऑफ रोड रैली का दूसरा दिन है। कल क्वालिफाइंग राउंड था, आज स्टॉक की रेस है और जो आने वाला कल है वो प्रिपेयर्ड की होगी। तो अभी हम अपनी रेस मुकम्मल करके आए हैं। मेरा तल्लुक टीम सुल्तान से है और मैं सबसे पहले साहिबजादा सुल्तान मोहम्मद अली साहब की तरफ से, वो किसी मसरूफियत की वजह से जलमगसी में नहीं आ सके, लेकिन उनकी तरफ से अपनी पूरी टीम की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बलूचिस्तान की आवाम का, जलमगसी की आवाम का, आप लोगों की मेहमान नवाजी का, और जो आपने हमें सपोर्ट दी, इज़्ज़त दी। और जहाँ तक जलमगसी के ट्रैक का तल्लक है, मैं और मेरे को ड्राइवर नबील अरशद, हमने अपनी मार्किंग जो थी वो अपने हवाले से पूरी कोशिश की कि उसको बेहतर करें। इस दफ़ा झल में एक नई चीज़ हुई है, वो ये हुई है कि जो रैकी थी, प्रैक्टिस थी ट्रैक की, वो सिर्फ एक दिन अलाउ की गई है। बाकी रेसों में आप 2, 4, 5 दिन पहले चले जाते हैं और ट्रैक को आप अपनी मार्किंग करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक दिन अलाउ था, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बहुत करीब है। मैं इस चीज़ पे भी बड़ा अप्रिशिएट करूँगा नादिर मक्सी साहब, उनकी पूरी टीम की एफ़र्ट को। और अभी तक के जो अनऑफिशियल रिज़ल्ट हैं उसके मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी कैटेगरी में पहले नंबर पे आ रहा हूँ और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो ये मैं इसको कायम रखने की कोशिश करूँगा। और मेरा जो ये विन है, इसको मैं जो हमारे फ़लस्तीन के शोहदा हैं, मैं उनके नाम अपनी इस जीत को करता हूँ। FIA गुजरांवाला और गुजरात सर्कल की बड़ी कार्रवाइयाँ। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस 6 मुलजिमान गिरफ्तार, जबकि दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं ब्यूरो चीफ गुजरांवाला गजनफर शाह। जी गजनफर शाह, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। FIA गुजरांवाला और गुजरात सर्कल की बड़ी कार्रवाइयाँ। डायरेक्टर गुजरांवाला जोन साजिद अकरम की हदायत पर इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। वीजा फ्रॉड और इंसानी स्मगलिंग के गनौने जुर्म में मुलव्वस 6 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान ने शहरियों को बैरून मुल्क भिजवाने के नाम पर करोड़ों रुपए हथियाए। गिरफ्तार मुलजिमान में तनवीर बेग, महबूब अमीर सुल्तान, शमरेज अख्तर, गुलाम जिलानी, अनवर अली और जफर अली शामिल है। मुलजिमान को गुजरांवाला और गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम जफर अली ने साथियों के साथ मिलकर शहरियों को गैर कानूनी तौर पर यूरोप भिजवाने के गर्ज से 76 लाख से ज्यादा रकूम वसूल की। मुलजिम महबूब सुल्तान और शमरेज अख्तर ने शहरी को कनाडा भिजवाने की गर्ज से 40 लाख बटोरे, जबकि मुलजिम गुलाम जिलानी ने शहरी को इटली बरास्ता लीबिया भिजवाने की गर्ज से 7 लाख बटोरे। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए मुतअद्दिद बार छापे मारे गए। मुलजिमान को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया, जबकि दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अब रुख करते हैं बलूचिस्तान के बड़े शहर जिला सिब्बी का। DIG सिब्बी रेंज डॉक्टर फरहान जाहिद साहब की खसूसी हदायत की रोशनी में SSP सिब्बी पुलिस अनायतुल्लाह बंगुलजई की सरबराही और DSP सिटी पुलिस मंजूर अली सियाल की निगरानी में ब्लैंड मर्डर शहीद बाबू सलीम के कत्ल में मुलव्विस मुलजिम को गिरफ्तार करके असला बरामद कर लिया गया। आइए इस हवाले से देखते हैं जिला सिब्बी से नुमाइंदा स्पेशल TV शौकत सोलंकी की इस खसूसी रिपोर्ट में। जी, DIG सिब्बी रेंज सिब्बी जनाब डॉक्टर फरहान जाहिद साहब की खुसूसी हिदायत की रोशनी में SSP सिब्बी पुलिस जनाब अनायतुल्लाह बंगुलजई साहब की सरबराही और DSP सिटी मंजूर अली सियाल साहब की निगरानी में SHO सिटी थाना सिब्बी ज़काउल हसन गुजर, SHO सदर थाना
सिब्बी गुलाम अली जिलानी, अबाबिल फोर्स इंचार्ज मीर लश्करान गिशकोरी, SI गुलाम अली और अबाबिल फोर्स के जवानों और सिब्बी पुलिस के अफसरान की मुश्तरका कामयाब कार्रवाई में ब्लैंड मर्डर केस बाबू शहीद सलीम खजक के कत्ल में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार करके असला बरामद कर लिया और संगीन मुकदमात में मुलविस दर्जनों मुलजमान को गिरफ्तार करके माल मसरूका समेत 1 अदद गाड़ी, 6 अदद मोटरसाइकिल, असला और मंशियात बरामद कर ली। SSP सिब्बी पुलिस जनाब अनैतुल्लाह बंगुलज़ई साहब ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि सिब्बी पुलिस ने अहम कार्रवाई करते हुए शहीद बाबू सलीम खजक के कत्ल में मुलविस मुलजिम समेत मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान मोटरसाइकिल, कार चोरी, राजनी, मंशियात फरोशी गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजमान से चोरी शुदा कार, मोटरसाइकिल, असला, मंशियात बरामद हो चुकी है। गिरफ्तार मुलजमान ने कार, मोटरसाइकिल चोरी समेत दिगर जराइम का इतराफ़ जुर्म कर लिया है। मुलजमान से मज़ीद तफ्तीश जारी है। इस मौके पर शहरियों समेत जिन अफराद का मोटरसाइकिल चोरी हुआ था उन्होंने SSP सिब्बी पुलिस जनाब अनैतुल्लाह बंगुलज़ई समेत SHO सिटी, SHO सदर, अबाबिल फोर्स इंचार्ज को फूलों के हार पहनाए, अपनी खुशी का इजहार किया। सिब्बी पुलिस की कारकर्दगी को खूब सराहा। मीडिया ब्रीफिंग के आखिर में SSP सिब्बी पुलिस जनाब अनैतुल्लाह बंगुलज़ई साहब ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ज़िला सिब्बी शहर के अमन व अमान को ख़राब करने की किसी को हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। जराइम पेशा अनासिर के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। कैमरा टीम के साथ रिपोर्टर शौकत सोलंकी, स्पेशल TV सिब्बी बलूचिस्तान। कराची में जहां पानी नायाब है, आवाम को पीने का पानी मैसर नहीं, वहीं कुरंगी नदी में गैर कानूनी बोर करने का सिलसिला जारी है, जहां से कंपनियों को पानी फरोख्त किया जा रहा है। इस हवाले से जानते हैं हमारे नुमाइंदा शाहजेब अब्बासी से। जी शाहजेब, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, मैं मौजूद हूँ थाना KIA की हुदूद नदी में और शहर कायद में, जहां एक तरफ सिंध रेंजर्स और वाटर बोर्ड का मुश्तरका ऑपरेशन पानी माफिया के खिलाफ जारी है, वहीं दूसरी जानिब नदी की तय तक जो है 5000 से जायद बोर गैर कानूनी जो है बिछा दिए गए हैं, जिनकी सप्लाई जो है कंपनीज में लाखों रुपए की अवज़ दी जा रही है। हमारे ज़राए ने बताया है कि यहाँ का जो सरगना है ख्वाजा नामी शख्स, जिसे DC अमले की भी कुछ काली भेड़ों की जो है सरपरस्ती हासिल है, और यहाँ पर वो पानी की सप्लाई का जो मामला है, जो पानी की फरोख्त का जो सिलसिला है वो उरूज पर जारी है। जी, शहर कायद में एक तरफ मलीर एक्सप्रेस वे का काम जारी है, दूसरी जानिब कब्जा माफिया ने मलीर एक्सप्रेस वे का फायदा उठाते हुए थाना शराफी गोट की हदूद में नदी में गैर कानूनी प्लॉटिंग करना शुरू कर दी। इस हवाले से जानते हैं स्पेशल न्यूज़ के नुमाइंदे साजिद अली से। जी साजिद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलीर एक्सप्रेस वे पर, और जो मलीर एक्सप्रेस वे की तामीरात जारी है, वहीं दूसरी जानिब मेरे अकब पे आप देख सकते हैं ये बादल गोट कहलाता है, जिला मलीर का इलाका है, थाना शराफी गोट की हुदूद। यहाँ पर लैंड माफियाओं ने नदियों को भी नहीं छोड़ा और ये नदी पे कब्जा करना शुरू कर दिया है, और यहाँ पर 5-5 से 10-10 लाख रुपए का प्लाट के खरीदो फरोख्त जारी है। हमारी जब इदारों से बात हुई तो उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि जिस तेजी से इधर काम जारी है, एक तरफ मलीर एक्सप्रेस वे की तामीरात जारी है तो दूसरी जानिब लैंड माफिया इसका फायदा उठाते हुए नदी की जमीनों पर, सरकारी जो जमीन है, इस पे प्लाटिंग का सिलसिला शुरू कर दिया है। अब देखना यह है कि थाना भी मुलव्विस है इसमें या नहीं, और इदारे हमारे अभी आंखें बंद करके क्या कर रहे हैं क्या नहीं, ये इदारों को सोचना चाहिए, ना कि कल को किसी गरीब के तमाम बचे कुचे जो जिंदगी भर के उनके पैसे हैं वो जाया ना हो जाए। जी, निगरान हुकूमत की जानिब से अवाम को रिलीफ देने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में वाज़िया कमी कर दी गई। अशियाए खुर्द-ओ-नोश की कीमतों और ट्रांसपोर्ट के किराएनामे कम न हो सके। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ गजनफर शाह से। जी गजनफर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महंगाई जो सी है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन गुज़श्ता रात पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हुकूमत की तरफ से वाज़िया कमी कर दी गई। अगर मैं बताता चलूँ पेट्रोल की कीमत में, तो पेट्रोल की कीमत में 14 रुपए कमी के बाद 260 रुपए फी लीटर पेट्रोल जो सा है वो सेल किया जा रहा है। इसके अलावा मैं अगर हाई स्पीड डीजल की बात की जाए तो हाई स्पीड डीजल जो सा था 279 रुपए में सेल किया जा रहा था, उसमें 13 रुपए 50 पैसे की कमी कर दी गई है। इसी तरह अगर मिट्टी के तेल की बात की जाए तो मिट्टी के तेल में भी 10 रुपए कमी कर दी गई है। जो पहले मिट्टी का तेल सेल किया जा रहा था वो 290 फी लीटर सेल किया जा रहा था, अब जो सेल किया जा रहा है 280 रुपए फी लीटर सेल किया जा रहा है।
अगर जब हमारी आवाम के साथ बात हुई तो आवाम का यही कहना था कि ट्रांसपोर्ट हजरात ने जो किराए नरकनामे हैं उनमें कमी नहीं की। अगर लोकल चिंची रिक्शे की बात की जाए तो उनका वही किराया अपनी जगह पर बदजुमान है। अगर गुजरांवाला से लाहौर जाने के ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो उसका भी किराया अपनी जगह बदजुमान है। आवाम का एक ही शिकवा था, जब पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है तो तमाम जोन से ट्रांसपोर्ट हजरात और महंगाई जोन सी है वो अरूज पे चली जाती है। अगर हुकूमत की तरफ से आवाम को रिलीफ दिया गया है तो उसके सम्राट जोन से आवाम तक नहीं पहुंचे थे, क्योंकि आलमी मंडी में जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो महंगाई भी अरूज पे चली जाती है। अगर कम कर दी जाए तो महंगाई भी कम होनी चाहिए, जिसमें चाय खुर्द-नोश की कीमतें हैं उनको भी कम कर दिया जाना चाहिए। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट जो किराएनामे हैं उसको भी कम कर दिया जाए, दूसरी महंगाई भी कम होनी चाहिए। लेकिन हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में वाजिया कमी की है, लेकिन सस्ता रिलीफ पैकेज जो सा है वो आवाम तक चाय खुर्द-नोश की बात करें या दूसरी अशियाओं की बात करें वो आवाम को सस्ती नहीं मुयसर है। बस एक ही गिला है हुकूमत की तरफ से कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तो रिलीफ दिया गया है, अगर हो सके तो अशियाए खुर्द-नोश के साथ दालें सब्जियों की कीमतों में भी रिलीफ मिल सके। जी, उकाड़ा में चार पाँव और बांस से तैयार होने वाली चारपाई का देहाती कल्चर पंजाबी डेरों और घरों में बेहद इस्तेमाल होता है और हमारे पंजाब के कल्चर की अक्कासी करता है। उम्दा और खूबसूरत लकड़ी से ये चारपाई कैसे तैयार होती है, मजीद देखिए काशिफ नदीम की इस रिपोर्ट में। सदियां गुजर गई लेकिन शोक रंग के बांध से तैयार की जाने वाली चारपाइयां आज भी घरों की ज़रूरत हैं। उकाड़ा में ऐसी कई दुकानें और कारखाने मौजूद हैं जहां ये चारपाइयां फरोख्त के लिए तैयार की जाती हैं। चार पाँव और बांध से तैयार होने वाली चारपाइयों का देहाती कल्चर पंचायती डेरों और घरों में बेहद इस्तेमाल होता है। इनमें प्लास्टिक, सूती और पटे के बांध से तैयार होने वाली चारपाइयों की ज्यादा मांग है। ग्राहक लकड़ी का इंतखाब करे या लोहे का, बस चारपाई आरामदेह होनी चाहिए। उम्दा और खूबसूरत लकड़ी से ये चारपाइयां तैयार होती हैं। इसकी तैयारी के लिए रंग बिरंगे चार पाए और दो बाइयों का इस्तेमाल अहम है। चार पाँव को खूबसूरत बनाने के लिए इन्हें खूबसूरत रंगों से सजाया जाता है। आज के जदीद दौर में दीगर आसाइशें अपनी जगह, लेकिन लोग आराम के लिए चार पाइयों को ही फरोग देते हैं। ये खूबसूरत और दीदाजेब चारपाइयाँ बच्चियों की शादी पर जहेज पर खुसूसी तौर पर दी जाती हैं। वक़्त के बदलते हुए तकाज़ों के बावजूद खूबसूरत लकड़ी और बांध से बनाई हुई चारपाइयों की अहमियत अपनी जगह बरकरार है। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।